Good morning. This is Suleta. Welcome to my YouTube channel SM Education, the educational platform. Today we learn about the pedagogy of English, paper 11th, second year, third semester, question number 6. So, those who have not seen or read the previous videos, already uploaded it. So go through my channel SM Education and listen that one. Okay. So the next question will go question number 6. The question is about explain communication for classroom teaching, or write about the significance of communication in the classroom teaching. So communication for classroom teaching. एक क्लासरूम टीचिंग के लिए कम्युनिकेशन क्या होता है या क्यों चाहिए उसके बारे में जानेंगे, या कम्युनिकेशन के जो सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्णता है, वो क्या है जानेंगे. ओके. सो हमें तो पता है कि कम्युनिकेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द लाइफ. ओके. कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जीवन के लिए. तो उसी तरह से कम्युनिकेशन जो है टीचिंग के लिए भी बहुत ही विटल रोल प्ले करता है. सर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही एक विटल रोल प्ले करता है, या फिर एक इंटीग्रल पार्ट कहेंगे, यानी अविच्छिन्न अंग ही कहेंगे, उसका ही एक अंग है कहेंगे. यानी आपके लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में कम्युनिकेशन एक इंटीग्रल part है. So communication is an integral part of the teaching learning process. Okay, teaching is a social activity that involves both the teacher and the learners. Okay, so friends, what is teaching? Teaching is the social activities. Okay, teaching is the social activities because we learn the things, we study the things from the society. Okay, the children belongs from society. The children are belong from the society. The teacher also belongs to from the society, and the teaching is a social activity in which both the students and the learners are involved. Okay, so it is therefore important that a two-way communication exists between them in order to trigger the learning. Okay, why there is a two-way of communication exist? Because in a teaching learning process there are two part are there. One is the teacher part and another are the students part, or the children's are the part, or the learners are the part. So it is a two-way communications. Okay, it is therefore important that two-way communication exists between them in order to trigger the learning. Okay, there is a two-way communication, one-way communication from the teacher side and another way of communication from the learner side, or the children's side or the student side. Okay. So moreover, direct communication between the teacher and learner allow the teacher to get immediate feedback that can help him, her, girls, learners. Okay, understanding of what has been taught. Okay, so moreover, direct here we will came to know about direct communications. What is direct communication? Through direct communication, a teacher can understand immediately or get immediate feedback from a learner, and the teacher can measure the learner's feedback. Okay, what they learn and what are the drawbacks. Can a teacher can directly get that informations from direct communications. Okay, तो direct communication में क्या हो सकता है कि टीचर जो इमीडिएटली फीडबैक एक बच्चे से ले सकती हैं, एक बच्चे का ज्ञान जो माप सकती हैं, उसने कितना समझा, कितना पढ़ाई को अंडरस्टैंड किया, टीचर ने जो पढ़ाया क्या उसने समझा, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से क्या कर सकते टीचर ले सकते. अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन टॉट, जो पढ़ाया गया जा चुका था उसमें से बच्चों ने कितना अंडरस्टैंडिंग किया, उसे माप सकते हैं टीचर. कौन से मेथड से माप सकते हैं? डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड से. सो थ्रू द डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड द टीचर कैन gauge the learners what he has been understood, what he or she understood the teacher has been taught. Okay, so based on such feedback the teacher can improve his or her communication.
So the direct method of communication is beneficial for the teacher. Why it is beneficial for the teacher? Because the teacher can get the feedback from the learner and find out the drawbacks and improve herself. Okay. Due to the rapid change taking place in our social system, teaching learning environment is also changing at fast pace. Okay, so there are also changing rapid. There are continuous changes going on in our environment. So according to the changes, according to this changing of environment, the teaching learning process also having changing environment fast pace. Okay. The information explosion due to the increased access to different mass communications media has increased the awareness level of learners. So mass communication, different mass communication media is very important. This mass media educations, this mass media educations can increase the awareness of the level of the learners. Okay, so this is very important that the direct communication is between the learners and the teachers is very important, and also the mass communication is increasing the awareness of the level of the learners. Okay, then as a result they have higher expectation from their teachers than ever before, because there are changing of environment in the mass media education. So okay, mass media communication, so they can got the information as fast as and according to this they can be accepted. They have higher expectation from the teacher according to their changing environment. The role and the profile of the teacher is also changing. Okay, the role and the profile of the teacher is also changing. See here he has to undertake varied roles. Okay, the teacher has to take on various roles for their education, so for their communications. While on one hand the teacher has to fulfill the tasks of being the source of information, on the other hand he has to act as a counselor, mentor and guide. Okay, the teacher will fulfill the tasks of being a source of information. Okay, the teacher will have so much informations, have to know this, so much information, and he or she will the source of information for the students, and also he or she has to act as a counselor, mentor and the guide. Therefore, the classroom manager must know exactly what good communication is and what the principles and the condition of effective communication are. So, classroom manager must know the exact what is good communication, what is necessary for the good communication. Okay, what is good communication, what is necessary for the good communications. Okay, what are the principles of the communication and the condition for the effective communication. तो एक क्लासरूम मैनेजर उसे एग्जैक्टली पता होगा कि एक गुड कम्युनिकेशन क्या है और प्रिंसिपल कम्युनिकेशन और कंडीशन फॉर इफेक्टिंग कम्युनिकेशंस क्या है, ये उसे पता होना चाहिए. विच फैक्टर माइट इम्पेयर दिस, और कौन सी फैक्टर जो है एक गुड कम्युनिकेशंस को इफेक्ट करेगा. सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हैपन्स व्हेन द मैसेज इज अंडरस्टूड करेक्टली. ओके, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कब होगा, जब मैसेज को जो रिसीवर है, जो चिल्ड्रन से लर्नर से, वो ठीक से समझ पाए, एंड फीडबैक गिवन टू द सेंडर इज एक्सेप्टेबल, और जो फीडबैक दिया जाएगा वो जो सेंडर है वो उसे ग्रहण कर पाए. तो हमें ये पता चलता है जो टीचर जो है आजकल मास मीडिया कम्युनिकेशंस हो चुका है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो टीचर को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है टीचर से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं. वो मास मीडिया से तो होता है, लेकिन टीचर को सब ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे उनसे वो सब लेना चाहेंगे. और एक टीचर का जो रोल है, प्रोफाइल है, बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ होना चाहिए. बहुत वेराइड रोल्स उनका होता है. वो बच्चे के हर एक चीज़ को फुलफ़िल कर पाए, उन्हें हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं. और ऐसा भी नहीं कि वो ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो काउंसलर भी है, वो मेंटर भी है एंड गाइड भी है. सो एक क्लासरूम मैनेजर को मोस्टली ये पता होना चाहिए कि एक गुड कम्युनिकेशन क्या है,
प्रिंसिपल क्या है, व्हाट आर द उसके गुड कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, और कौन सा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ उन्हें उससे पता होना चाहिए। और एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हैपन्स व्हेन द मैसेज अंडरस्टूड करेक्टली बाय द रिसीवर एंड फीडबैक गिवन टू द सेंडर। जैसे जो रिसीवर है उसे गुड कम्युनिकेशन कब कहेंगे, जो रिसीवर है उसे जो मैसेज है वो समझ में आए, और जो फीडबैक रिसीवर देगा वो सेंडर भी समझ पाए। So since all interactions in the classroom take place through the communication, it is crucial that the teacher तो ऐसा since all interaction in the classroom take place through the communication, जितने सारे interactions होते टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, जितने सारे interactions होते हैं वो सारी चीज़ क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ जो है रिसीवर और सेंडर जो है इनके बीच अच्छे से कम्युनिकेशन होने चाहिए। Since all interaction in the classroom take place through a communication, जितने सारे interactions होते हैं क्लासरूम में वे communications के माध्यम से होते हैं। So it is a crucial that the teacher ये बहुत ही important है कि टीचर को क्या क्या होना चाहिए, उन्हें क्या पता होना चाहिए। So teacher can communicate effectively, टीचर एक जो कम्युनिकेशन करेंगे वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावी जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके बीच जो बातचीत है वो एक प्रभावी होनी चाहिए। और हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल, और टीचर क्या करे, बच्चों को हेल्प करे उनके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए। एंश्योर ए क्लासरूम एटमोसफियर वेयर ऑल लर्नर्स कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड फीलिंग्स फ्रीली, ऐसा एक क्लासरूम एटमोसफियर बनना है कि लर्नर्स जो है अपनी फीलिंग्स, अपने व्यू को टीचर के सामने रख पाए। एंश्योर दैट द थॉट्स एंड द आइडियाज़ ऑफ लर्नर्स आर एक्सेप्टेड एंड अप्रिसिएटेड इन क्लास, और बच्चों के साथ क्या हो सकता है कि ऐसा वो एक अपना इंस्पायर करे, बच्चों को ऐसे एनकरेज करे कि बच्चे अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, वो सारी चीज़ जो आर एक्सेप्टेड एंड अप्रिसिएटेड इन द क्लास, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स को टीचर एक्सेप्ट करे, ग्रहण करे, और उनके आइडियाज़ को क्या करे, क्लास में अप्रिसिएट भी करे। Effective communication between the teachers and learners in the classroom include the sending of clear message by the teacher and the teacher receiving the clear message from the learner। यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होता है जब टीचर लर्नर को कुछ मैसेज सेंड करता है तो वो उन्हें क्लियरली समझ पाए, और टीचर बच्चों से भी, लर्नर से भी जो मैसेज है वो भी क्लियरली रिसीव कर पाए। ओके, देन आगे certain feelings can be lead to learners avoiding communication with results such as, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ओके जिससे क्या होते हैं, बच्चे कम्युनिकेशन को अवॉइड करते हैं। certain feelings can lead to learners avoiding communications। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं, ऐसी चीज़ें कुछ क्लासरूम में होती है, ऐसे कुछ चीज़ों को टीचर को ध्यान रखना चाहिए जिसके वजह से क्या करते हैं बच्चे कम्युनिकेशंस को, लर्नर जो है कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। सो सर्टन फीलिंग्स कैन लीड टू लर्नर्स अवॉइडिंग द कम्युनिकेशंस ओके विथ रिजल्ट सच एज बीइंग preoccupied with other issues and wanting to be left alone। कुछ ऐसे इश्यूज़ में बच्चे रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अकेले रहे, वहाँ से निकल जाए। ओके, बीइंग प्रीऑक्यूपाइड विथ अदर इश्यूज़, कुछ अदर इश्यूज़ में वो रहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम इससे निकल जाए, इससे अकेले रह जाए। fearing that they might be perceived as incompetent and therefore holding back on communication। कभी को वो अपने आप को इनकम्प्लीट सोचते हैं, इनकम्पिटेंट, एंड उनके पास कंप्लीशन के लिए वो साहस नहीं होता, अपने आप को इनकम्पिटेंट समझते हैं, उनके अंदर एक डर होता है और वो क्या करते हैं, जानबूझ के पीछे चले जाते हैं। सिंपली डिसलाइकिंग द स्कूल, और कुछ बच्चे हैं स्कूल को पसंद नहीं करते हैं। पीयर प्रेशर, हाँ दोस्तों का प्रेशर होता है। आज लर्नर perceive that their friends do not think that learners should communicate with teacher। ओके, और बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि कहीं मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे बच्चे ये ना सोचे कि मैं टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, और इससे उन्हें जो कुछ फीलिंग्स आती है उसके वजह से भी ये कारण होता है। प्रीवियस अनसेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन विद द टीचर, जो पहले से कुछ टीचर के साथ उनके कम्युनिकेशन अच्छे नहीं होते, विच इज़ नाउ कॉजिंग एप्रीहेंसन, जिससे वो दुखी हो जाते हैं, उनका मजाक उड़ जाता है। टीचर्स बी अवेयर ऑफ थिंग्स विच मे हैव
ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो टीचर को बहुत ध्यान देना है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्लासरूम में ना आए। द टीचर शुड अरेंज अपॉर्चुनिटी फॉर द डिस्कशन ऑफ सच फीलिंग्स। ओके, तो टीचर को ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है जिससे वो ऐसी फीलिंग्स के लिए बात कर सके, ऐसे एटीट्यूड के लिए बात कर सकते हैं, and expectations which remain just under the surface of the classroom communication to enable learners to improve themselves and benefit for better classroom communication। और इस तरह से एक अच्छे classroom communications create हो सके। ओके, the factors of effective communications। तो कौन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएंगे, उसके क्या फैक्टर्स हैं। यूज़ द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो एक टीचर को एक अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। यूज़ द बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी। यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी। ओके, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ फीडबैक। ओके, एंड टू बी कम्युनिकेशन टीचर्स एंड लर्नर्स बोथ साइड कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मोटिवेशंस। ओके, एंड उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, वन नीड्स एप्लीकेशंस, सेल्फ रिफ्लेक्शंस एंड द पर्सनल ग्रोथ टू बिकम ए गुड कम्युनिकेटर। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक है कि अच्छी स्ट्रैटेजी, टीचर की टीचिंग अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, इफेक्टिव यूज़ ऑफ फीडबैक होनी चाहिए, अच्छी टू वेज कम्युनिकेशन होनी चाहिए और मोटिवेशंस देनी चाहिए बच्चों के अंदर। और ऐसा भी है कि प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, वन नीड कैसे एप्लीकेशन करे, कैसे सेल्फ अपने आप को पहचाने, कैसे पर्सनल ग्रोथ करे, उसके कुछ सिद्धांत भी उन्हें बनाने चाहिए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस पढ़ा कि एक क्लासरूम टीचिंग कम्युनिकेशंस क्या होता है, कैसे होता है, उसमें टीचर्स का क्या रोल होता है। ओके, पहले तो आप लिखोगे कि क्लासरूम टीचिंग कम्युनिकेशंस क्या होता है, किस तरह से करते हैं, टीचर्स का क्या रोल हो जाता है उसमें। देन आपका आ जाता है कि टीचर के लिए क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर आता है कि टीचर और लर्नर के बीच जो कम्युनिकेशंस होता है तो उसमें टीचर कौन सी बातों को ध्यान रखनी चाहिए और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। एक्सप्लेन कम्युनिकेशन फॉर क्लासरूम टीचिंग और राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम टीचिंग। ओके, तो आपको तो पढ़ के लिखना है या समझ जाइए और अपने से लिखिए, क्योंकि हम तो रट्टा नहीं लगा सकते हैं ना। तो आपको क्या याद रखना है, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन फॉर क्लासरूम टीचिंग में आपको क्या याद रखना है कि जो कम्युनिकेशन है वो दोनों के बीच होता है, टीचर और लर्नर स्टूडेंट के बीच होता है। ओके, और ये कम्युनिकेशन जो है क्या क्या होना चाहिए और एक अच्छे कम्युनिकेशन को टीचर को क्या फ़ायदा होता है, उससे वो क्या ले सकती हैं। और एक अच्छा कम्युनिकेशन का उसका अलग सा ही जगह होता है, वो जगह होता है। और जो आजकल जो कम्युनिकेशन है मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, तो बच्चे पहले से सब कुछ जानते हैं, इसलिए टीचर को क्या है बहुत सारी चीज़ें जानना है, उससे टीचर को एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनना है। और क्लासरूम कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीचर को अच्छे टीचर जो है सेंडर है मैसेज जो सेंड करते हैं वो क्लियरली सेंड करे और रिसीवर जो है उसे अच्छे से समझ पाए, इसे ध्यान देना है। और कुछ ऐसे है जो टीचर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं कि वो किस तरह से अपने क्लासरूम को संभाले, किस तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करे, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और किस तरह से कौन सी सारी चीज़ों को ओके बच्चे जो है ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से बच्चे जो है और लर्नर्स जो है कम्युनिकेशन को अवॉइड करते हैं, उसके प्रति टीचर को ध्यान देकर उसका जो निवारण करना है। और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टीचर को क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें आप लिखेंगे ये सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आ जाता है कि सिग्निफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको याद रखना चाहिए कम्युनिकेशन क्या है, ओके, टीचर का क्या रोल होता है। और आजकल कम्युनिकेशन बहुत सारे मास मीडिया का यूज़ होता है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़ चुका है, तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन टीचर को माना जाता है। और टीचर जानते कि क्या करने से अच्छा कम्युनिकेशन हो सकेगा और क्या नहीं।
ये जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, क्या क्या रीज़न है, और कुछ ऐसे कारण है बच्चे क्लासरूम को अवॉइड करते हैं या स्कूल को अवॉइड करते हैं, उसमें क्या क्या रीज़न्स है, उसमें टीचर क्या करना चाहिए, और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए टीचर को। तो ये सारे हैं आपके जो सिग्निफिकेशन ऑफ classroom communications. Okay, so thank you for watching this video, and if you understand it and it is useful to you, then like it, always keep it. Okay, take care, bye bye.